Hmm. A very good afternoon, class 6th. How are you all? I hope all are fine and watching the video properly, doing their homework properly, and by staying home. I hope कि सभी लोग अपने हाथों को बार बार धो रहे होंगे, सुरक्षित सभी बच्चे होंगे हमारे, सारी फैसिलिटीज़ उनको घर में प्रोवाइडेड हैं, सबका इस्तेमाल करिए, साथ ही साथ लगन से पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए, इन टुडेज क्लास लेट्स कंप्लीट all the chapter of 2. Okay, chapter 2 today I will complete, in which yesterday I was talking about the diseases which are caused by the deficiency. Okay, so in this class we will discuss it about the deficiency diseases. After that, some points are here about the summary of the chapter 2. Okay, components of food. So class 6, please pay attention all of you. और भाई आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आप लोग कमेंट किया करिए. You should comment in the comment section. Whatever you feel any kind of problem, you must comment, because when I will start my further class, definitely I am going to ask those questions which I taught in this class, online class. Okay, so let's come. It is saying here about the deficiency diseases that all deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. It is clear. It is saying that all diseases, जितनी भी बीमारियां हैं, deficiency diseases, वो क्योर हो सकती हैं, प्रिवेंट हो सकती हैं. ठीक है, प्रिवेंट हो सकती हैं कैसे? बाई टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट. संतुलित आहार से ही ये पॉसिबल है कि जितने भी डेफिशिएंसी डिसीजेस हैं वो प्रिवेंट की जा सकती हैं. ऐसा क्यों है? उसके पीछे रीजन ये है कि ये क्या करता है, बैलेंस्ड डाइट आपका जितने भी आपके कमियां रहती हैं, डेफिशिएंसी रहती है, न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन्स की, मिनरल्स की, एंजाइम्स की, फैट्स की, या किसी अन्य कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है, इन सबको क्या करता है, ये उसकी भरी पूर्ति करता है, बैलेंस्ड डाइट. ओके, so in fact you can see here in components of food, this chapter 2 contains each and every point about the nutrients. Okay, nutrients are almost the components of food, and we all talk about these nutrients. Okay, so in this chapter, इस अध्याय में हम देखते हैं, we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. ऐसा हम अपने आप से इस चैप्टर में पूछे भी हैं, ठीक है, कि हम ऐसा क्यों फील करते हैं, या फिर अपने आप से जानने की कोशिश करते हैं कि ये रीजन क्या है कि जो है डिफरेंट रीजन्स में भी हमारे पास क्या होता है, हैड ए कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन. कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स व्हाट? कंपोनेंट्स ऑफ फूड. ओके, definitely we know that we all eat different types of foods. Okay, food materials from the different section of the society, either from the North India, South India, West India, East India. Okay, so we have different regions but same food, different foods, but the components of food are same. Okay, so here you can see, actually we what we do, we asked ourselves this type of questions. Okay, so we find, हम ऐसा पाते हैं, ensures that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body. Definitely yes, our body is made up of different multicellular. Okay, so बहुकोशिकीयों से हमारे शरीर का निर्माण होता है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है हमारी बॉडी का जो एक फॉर्मेट है, प्रोफार्मा है, वो सेम है. ठीक है, सेम है यहाँ पे, तो डेफिनेटली हमारा जो डाइट होना है वो बैलेंस होना होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है कि न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी. ओके, सो इट इज द, हम रिकॉल करते हैं कि इट इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन कंक्लूड द डेफिशिएंसीज
diseases, okay, by preventing them from having or intaking the balanced diet. Clear है guys? अब इसमें आई थिंक कि कोई डाउट नहीं होगा, ओके तो अल्टीमेटली हम देखें तो बैलेंस डाइट से ही जितने भी डेफिशिएंसी डिसीज होंगे वो क्योर हो जाएंगे। अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स को आप अगर आप ध्यान से करेंगे तो वॉट एवर आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट क्लास द एक्सरसाइजेस you should do by the help of these all points, okay? Definitely in this class I am going to teach you about the points which are in the summary, okay? So first point here you can see the major nutrients in our food are carbohydrates. You know well, जो मेजर न्यूट्रिएंट जो प्रमुख होता है पोषक तत्व वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन्स होता है, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. These are the five components which contains fully nutrient food, okay? So carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. And I taught you that the amount of carbohydrate present in the food what you eat is directly equal to the amount of fats, okay? Directly equal to. अब ये इसकी चाहे मात्रा लेस हो, इसकी ज्यादा हो, लेकिन क्या होता है जब इसका स्केल देखा जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, इसमें फैट्स में ज्यादा एनर्जी मिलता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में एनर्जी मिलता है, लेकिन अगर फैट्स की मात्रा में देखा जाए तो ये इक्वल होता है. लेकिन कभी क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स अगर मात्रा में अधिक दे दिया जाए, जो कि फैट अगर कम भी रहता है तो भी फैट की मात्रा में एनर्जी अधिक आती है, ठीक है. अब ये पिछले क्लास में हमने पढ़ा था विटामिन्स एंड मिनरल्स, ओके. इन एडिशन आपने देखा था इसके अलावा डाइटरी फूड्स कुछ होते हैं जस्ट लाइक रफेज वाटर, ओके, रफेज एंड. क्लियर है गाइस? यहाँ देखते हैं हालांकि उनका कोई विशेष काम नहीं होता, उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, लेकिन वो आपके फूड को फुलफिल करते हैं. क्लियर है? देखिए यहाँ पे इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर. डाइटरी फाइबर्स मीन्स व्हाट? रफेज, ठीक है. रफेज मतलब फॉर एग्जाम्पल सपोज आप कोई वेजिटेबल्स है उसको आप धोते हैं और धोने के बाद जो पानी वगैरह बचता है, ठीक है, वो पानी क्या होता है, डेफिनेटली उसको हम यूज कर लेते हैं, ठीक है. इस तरह के जो चीजें होती हैं हमारी फूड को क्या करती हैं, फुलफिल करती हैं. अब यहाँ कह रहा है कि फाइबर्स एंड वाटर, ओके, और वाटर का ये काम है क्या करता है, इट रिलीज the nutrients, it release the nutrients from the food after cooking the meal, okay. चलिए, carbohydrates and fats mainly provide energy to our body. और carbohydrates और क्या कहता है, carbohydrates and fats mainly provide energy to our body. और इसे प्रमुख जो ऊर्जा का हमारा साधन है वो कार्बोहाइड्रेट्स और कहां से मिलता है, फैट से मिलता है, ठीक है बच्चा. चलिए, अब कह रहा है थर्ड पॉइंट इज प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी. यही पढ़े थे हम कि जो प्रोटीन्स होता है वो क्या करता है, हमारे सेल्स को क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है. इट हेल्प्स इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स, ओके, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और बॉडी. एंड अबाउट द मिनरल्स, ओके, आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, ठीक है. हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, विकास के लिए और उसकी मेंटेनेंस के लिए ये बेहद आवश्यक है. मिनरल्स एंड व्हाट, प्रोटीन्स. एंड you well known that proteins where the proteins are contained, it is you can get it from the soybean, just like soybean, pulses, okay, rices, etc., okay. So these all are the fishes, you can get the proteins from here. These all are the examples from where you can get the proteins. Egg, the yolk of egg. Now come to the fourth point. Vitamins help in protecting our body against diseases, okay. Different types of vitamins, just like vitamin A, okay, B, C, D, okay, K, E, okay. These all are the vitamins, okay. So these are all are the you can say vital vitamins.
विच आर नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस, ठीक है, बीमारियों से बचाता है। अब आगे देखते हैं जरा सा। बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज, ठीक है। बैलेंस डाइट क्या करता है, जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की जो आवश्यकता होती है उसको राइट क्वांटिटी में प्रोवाइड कराता है। क्या करता है बच्चा, राइट क्वांटिटी में प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अलोंग विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, हमने कहा था कि इसमें क्या होता है, जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। दिस ऑल आर द पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ओके। सो रफेज एंड वाटर प्लेज एन वाइटल रोल इन एडिशन, okay, in addition. Now deficiency of more nutrients in our food may cause certain diseases or disorders, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अगर ज़्यादा मात्रा में अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो क्या होता है, यहाँ पे जो डेफिशिएंसी ऑफ मोर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिसीजेस कॉज करते हैं और डिसऑर्डर्स हो जाते हैं बॉडी में, ठीक है। जैसे लाइक वोमिटिंग, डायरिया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं। ये किसके वजह से होता है, जब ज़्यादा मात्रा में पोषण की कमी होती है, ठीक है बच्चा। तो आज की क्लास में आप लोगों ने देखा कि डिफिशिएंसी डिसीजेस क्या होते हैं, ठीक है, इसको कैसे मेजर किया जा सकता है और इसको कैसे क्योर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और आपने इस पॉइंट्स को आज देखा, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स आर देयर, ओके। तो दिस ऑल आर द समरी ऑफ द चैप्टर 2। और डेफिनेटली जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे उसमें ये बड़ा हेल्पफुल होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को प्रीव्यू करके देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं और अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू एक्सरसाइजेस, ओके। सो क्लास 6 आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।